Mr. Abhijit, do you find the videos of the students on? No, sir, the students have not yet turned on the videos. So once again, I'll request all the students. Yes, now they are turning it on. Very good. Students are Students, turn on your. right. Right. You all are requested to turn on your video so that then there can be face-to-face interaction as well whenever it is needed. And that when your video is on, that really makes the session interesting for the resource person. Otherwise, it looks that someone is communicating to a wall which has almost no reaction to the message given, or that becomes quite dull. So you all are requested to keep your video on and mic muted. In the next 2 minutes, we'll be starting. Abhijit, after 1 minute, you can take permission from the resource person and then you can start with this. So yes, students, as our CEO sir has requested all the students also to turn on their cameras. I will repeat once again. The mic should be muted. Do not turn on your mic. Your camera should remain on during the session. In a very short while, we are going to start our webinar on how to prepare for NTSC and other competitive exams. See, students, this global pandemic time is there throughout the country, throughout the different countries in the world, but to make you aware about the competitive exams, how to prepare for NTSC and all, the school management is working hard to bring the best of the facilities to your knowledge so that you can get the information. So today we have a session on how to prepare for NTSC and other competitive exams. The resource person for today has already joined the meet. Our coordinators, our CEO sir have already joined the meet. Few students are still joining. We can see on the screen. So now the limit is full, sir. Sir, we can start, Mr. Abhijit. Yeah, take permission from resource person, yes, and we can start. Right, sir. So I would request our resource person, Mr. Pankaj Kumar, to please turn on the camera, and sir, with your permission, can we start the session, sir? Thank you so much, Abhijit, sir. I think I'm audible to all of you. Sir, yes, sir. So students, you can see on your screen our resource person for today's webinar on how to prepare for NTSC and other competitive exams is with us. So before starting the meet, I would like to welcome our resource person on behalf of the entire school management to give his valuable time, to spare his valuable time for our students and to guide them. Now I would request our resource person to please start the session. Thank you once again, Abhijit, sir. Thank you. Thanks a lot. To begin with, I would like to thank the school management. Prakash sir is here. Thank you, Prakash sir, for arranging this discussion with our pleasure to have you here, sir. Right. And Rajiv sir and all the academicians from your school. We welcome all of you. And definitely, hello everyone, all the students. Welcome to all to this today's session that your school had arranged, और हम लोग को आज मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ interact करने का. I think student, can any one of you confirm कि रांची से कितना दूर है आपका स्कूल यहाँ से? किसी को आइडिया है? See, first of all, I would like to make this session absolutely interactive. आप लोग ये याद रखिएगा, जो भी जवाब दे रहे हो अपने ऑडियो को अनम्यूट करो and just tell us. ठीक है, you can always write. I can see the it is flashing on the screen. Sir, about 150 kilometer. 150 kilometer. देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि things has changed quite a lot. Last year और उसके पहले, even जब हम लोग भी स्कूल से इंटरेक्ट करते थे, we used to usually go physically in the school. वहां पे सारी चीजें अरेंज की जाती थी और 2-3 दिन पहले पूरा अरेंजमेंट होता था. उसके बाद जाकर के 1-2 घंटे का इंटरेक्शन हुआ, फिर वहां से वापस गए, पूरा दिन लग जाता था.
आज का टाइम देखो, you guys are sitting comfortably at your house, all the senior academicians and principals is there in the school, और जहां से भी वो चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और मैं अपने ऑफिस रांची में यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ. What I am trying to tell you कि everything, हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. अगर ये कोविड ने इतने पेन दिए हैं, इतने हैसल्स दिए हैं हम लोग को, तो एक ये बहुत बड़ा लर्निंग दिया है कि यस, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे. इनफैक्ट हम लोग भी नहीं सोच पा रहे थे कि हम लोग किस तरह से वर्कशॉप कंटिन्यू करेंगे और कैसे बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएंगे. बट आज देखो, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले भी होता था. जूम प्लेटफॉर्म एंड दिस गूगल मीट was there earlier also, but we never realized the importance of it. और आज कोविड ने इस चीज के इंपॉर्टेंस को रियलाइज कराया है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे कि कंफर्टेबली स्कूल इज आल्सो कंडक्टिंग ऑल द क्लासेस ऑन अ रेगुलर वे. और आज देखिए, इतने दूरी होने के बाद हम आप लोगों से मिल पा रहे हैं, एंड वी ऑल असेंबल्ड हियर टू नो समथिंग बियॉन्ड योर स्कूल कोर्स करिकुलम. कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, स्पेशली फॉर द क्लास 9 एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स. सो वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन. और आई हैव बीन टोल्ड दैट टुडे वी हैव असेंबली ऑफ क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स. कैन एनी वन ऑफ यू स्टूडेंट कंफर्म मी how many of you there in the 9th standard? मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा कि यहाँ पे कितने लोग हैं, बट आपके स्कूल में 9th में कितने स्टूडेंट्स हैं और 10th में कितने स्टूडेंट्स हैं? Just any one of you. Naskar sir can unmute himself and give the idea. The secondary section coordinator. Naskar sir, can you? Near about 250 students are there in standard 9. And standard 10 also, we are having near about 260. Okay, quite a good number. Quite a good number, sir. And मैं एक्चुअली देखिए स्टूडेंट्स आपके पूछने का पर्पस क्या था. Around 200 students in 9th and around 200 plus students in 10th standard. आप लोगों ने कभी ये फील किया है कि जब भी आपके स्कूल्स के एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम हो गए, टर्मिनल एग्जाम हो गए, या कोई भी एग्जामिनेशन जो होता है, आपने ये जरूर फील किया होगा कि मेरे क्लास में एक साइलेंट सा बैठा हुआ लड़का, जिसको मैं कभी नहीं देखता हूं कि क्लास के अंदर वो इंटरेक्ट कर रहा हो, टीचर्स के जवाब दे रहा हो, या कोई भी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा हो. बट व्हेनेवर द एग्जाम हैपेंस, पता नहीं क्या होता, उस लड़के का नंबर हमेशा ज्यादा आ जाता है. आप लोगों ने कभी ये फील किया है? सी, आई वांट टू लिसन फ्रॉम द स्टूडेंट. प्लीज अनम्यूट करके जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं वो आप जवाब दीजिए. Yes. और ये कभी फील किया है स्टूडेंट आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. It happens with most of the student. और हर एक स्कूल की ये कहानी है. हर बार ऐसा हम लोग फील करते हैं, यार इस बच्चे को नंबर कैसे आ गया. जरूर कोई दूसरा रीजन है, पढ़ाई तो मैं करते देखता नहीं इसको, क्लास में इंटरेक्ट करता नहीं है, बट व्हेनेवर द एग्जाम हैपेंस ही और शी गेट्स द मैक्सिमम नंबर. हाउ इट इज पॉसिबल? स्टूडेंट्स, इस पे इंट्रोस्पेक्शन करना, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर विथ यू. देखिए, आज हम लोग सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं करेंगे. आज जब हमें मौका मिला है तो मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि पढ़ाई की कैसे जाती है. एक तो तरीका जो हम लोग रेगुलर फॉलो करते हैं कि हमने स्कूल गए, या अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वी पार्टिसिपेटेड इन दैट पार्ट. उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सेल्फ स्टडी किया, जो डाउट आया उसको कैसे हैंडल किया, इस सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे. लेकिन आप ये ध्यान रखना कि वो जो स्टूडेंट है, ही इज नॉट ओनली डूइंग द हार्ड वर्क, but he is also doing some smart work. Believe me, if you want to optimize your performance, it is not the hard work only which is going to take you to the top. You have to devise some smart tools. अब आप देखो, एक रिक्शा वाला भी तो भैया पूरा दिन मेहनत करता है, 8-9 घंटे मेहनत करके. Guys, if he earns 500 rupees or 400 rupees in a day,
उसके घर में पार्टी होती है। आई नो पार्टी क्या होती है, पार्टी ये होती है कि भैया 3 टाइम का खाना मिलेगा आज सबको, मेरे पूरे फैमिली को 3 टाइम का खाना होगा, ये उनकी पार्टी है। तो वो भी तो हार्ड वर्क कर रहा है, एंड वी आल्सो डूइंग द हार्ड वर्क, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। बट वहीं पे अगर हम लोग कुछ स्मार्ट टूल ऐड कर लें अपनी पढ़ाई के अंदर, बिलीव मी दिस इज द डिफरेंस दैट यू सी, कि कोई स्टूडेंट क्यों हर एक मोमेंट में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखोगे स्कूल के अंदर भी बेस्ट परफॉर्मेंस आ रहा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया एक गो में क्रैक कर लिया, और इट कैरीज ऑन, 9th में वही, 10th में वही, 11th में वही, 12th में वही। ये जो कंसिस्टेंसी इन योर सक्सेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड बिलीव मी आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू स्मार्ट टूल्स विथ यू। एंड बिलीव मी गाइस, ये जो स्मार्ट टूल मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, ये कोई मेरा डिवाइस नहीं किया हुआ है। Guys, I'm in a FitG for last 17 years, and I was at Delhi when FitG Ranchi started back in 2003. You know, the management said that, Mr. Pankaj, you go there and look after the entire area. Entire area means Ranchi and beyond. So presently here, sitting in Ranchi, we are coordinating all the activity across Jharkhand. We have awesome students across this region. गजब का परफॉर्मेंस और गजब के रिजल्ट आते हैं यहाँ पे बच्चों के। बट यस, ये रिजल्ट का एक क्रेडिट भी बिल्कुल जाता है कि बिसाइड द हार्ड वर्क दे आर ऑल इन्वॉल्व इन मल्टीपल स्मार्ट वर्क्स। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यू अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस चीज को ध्यान से समझना। और ये मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, आई मस्ट टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपने सुना होगा 2019, 2020 जो जेई एडवांस, जेई का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस, मतलब आईआईटी जेई के अंदर जो एडमिशंस होते हैं गाइस, उसमें 12th के बाद बच्चे एग्जाम जो देते हैं, उसमें झारखंड स्टेट से 2019 में जो टॉपर थे, हिज नेम वाज अंकित जैन, and his all India rank was 30. Last year again, Dayal Kumar, he also became the Ranchi state topper. इस बार भी JEE मेंस के एग्जामिनेशन हुए हैं, राहुल एंड अदर गाइज आर देयर। यू नो, मेरी एक आदत है, जब भी ये बच्चे परफॉर्म करते हैं, आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये अपने रिजल्ट में कंसिस्टेंसी कैसे लेके आते हैं। गाइस, इस चीज को ध्यान से समझना और बिल्कुल नोट करके रखना। आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू देयर टेक्निक। ये उन सक्सेसफुल बच्चों का टेक्निक है जो ये स्मार्ट टूल के रूप में अपने पढ़ाई के अंदर यूज करते हैं। यू नो, लास्ट ईयर व्हेन आई आस्क्ड दिस अंकित जैन कि अंकित टेल मी, आपको जब स्कूल के अंदर या फिटजी के अंदर जब पढ़ाई होती है, क्लासेस में जो पढ़ाई होती है, तो क्या आपको कोई डाउट नहीं आता? ऐसा क्या होता है कि वो जो टीचर ने पढ़ाया सब कुछ एक गो में समझ में आ गया? He said कि नो सर, जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट, डाउट्स हमारे भी होते हैं। इनफैक्ट 40%, 50% एरिया डाउट में रहता है सर हमारा भी, बट वी डू समथिंग डिफरेंट। कुछ सर अलग करते हैं, वो हम लोगों ने बना रखा है टूल। एंड बिलीव मी गाइस, मैंने जितने भी बच्चों से जब इंटरेक्ट किया, एक कॉमन पॉइंट ये निकल के आया कि ये डिफरेंट क्या कर रहे थे, एंड दैट डिफरेंट इज एक्चुअली आई एम गोइंग टू लेट यू नो टुडे। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है स्टूडेंट? यस सर। देखिए, बीच बीच में कंफर्म कर ले रहा हूं, बिकॉज यू नो, पता चला मैं बोले जा रहा हूं, आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा हो। जब मैंने इसको डिटेल्स में पूछा कि अंकित बेटे करते क्या हो तुम, हाउ डू यू हैंडल योर यू नो डाउट्स एंड स्टडी, बोले सर बहुत सिंपल है, स्कूल्स के अंदर क्लासेस हुआ, घर वापस लौट गया। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अर्ली इन द लास्ट ईयर, दैट टाइम ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी। वंस वी कम बैक, अपने लंच वंच करने के बाद
whenever we go for the self study, पहले जो पोर्शन मेरे को प्रॉपर समझ में आया उसको हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया, लेकिन जो पोर्शन समझ में नहीं आया था, इसके लिए सर हम लोगों ने हर सब्जेक्ट का एक डाउट बुक बना के रखा है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा इसको। वी प्रिपेयर डाउट बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं। वी हैव द क्लास नोटबुक एंड वी हैव अ डाउट बुक। और डाउट बुक को हमने बड़े अच्छे डेकोरेट करके हमने उसको माई रेड बुक का नाम दे रखा है। मतलब यू गिव वॉट एवर द नेम विच फैसिनेट्स यू, माई रेड बुक। सर हम लोग करते क्या है इसमें कि जो पोर्शन आज मेरे को समझ में नहीं आया, से फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में आज मोशन पढ़ाई हुआ था स्कूल में, मुझे मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो सर ने डिस्कस किया मुझे क्लियर नहीं हुआ। सो व्हाट वी डू, वी टेक आउट दैट पोर्शन फ्रॉम द स्कूल नोटबुक और उसको डाउट नोटबुक में सीरियल नंबर 1 लिखा, आज का डेट डाला और लिख करके क्लोज कर दिया। So we keep on doing this thing for a week time, 10 days, 11 days, 12 days. अब देखिए मैजिक यहां पे होता है। इनका कहना है कि सर हर एक स्टूडेंट का अपना एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है प्रेशर को लेने का। बिलीव मी, जब आप 12th डेज के बाद आप उसमें फिर से अपने फिजिक्स डाउट बुक में ओपन करके नोट करने जाओगे, देन यू हैव टू टर्न अराउंड 2-3 पेजेस एंड द सीरियल नंबर 22 और 23, इतने डाउट तो हो ही जाएंगे आपके। दिस इज द ट्रिक। इनका कहना है कि नो स्टूडेंट कैन बियर दिस प्रेशर कि मेरे 3 पेजेस की फिजिक्स में डाउट यहां पे बने पड़े हैं and I'm not going to the faculty to clarify my doubts. Believe me, किसी का ये प्रेशर 7 दिन तक चलेगा, किसी का 10 दिन पे, किसी का 12 दिन, किसी का 15 दिन, but the pressure will come automatically. Try to understand these things. This is a human psychology. Unless until you don't have a controlled and sustained pressure, your optimum never comes. I give you an example. Why it happens कि जब तक आपके स्कूल एग्जाम के डेट डिक्लेयर नहीं होते हमारी पढ़ाई नहीं होती। द मोमेंट डेट डिक्लेयर्स, आप देखिए 1 बजे 2 बजे रात तक आपकी नींद खत्म, और वैसे तो 8 बजे नींद आती है। यू एग्री? यू विल एग्री। Yes, sir. यू विल एग्री। आई नो दैट। Yes, sir. ये होता है स्टूडेंट्स। ये सिर्फ इसलिए होता है कि एज ए ह्यूमन दिस इज आवर टेंडेंसी। मैं सिर्फ स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे प्रोफेशन में भी ये है। एवरीवन, जब तक टाइम फ्रेम का टारगेट नहीं होता है, कुछ अचीव करने के लिए सेट टाइम फ्रेम नहीं होता है, वी टेंड टू रिलैक्स। अरे कर लेंगे ना यार, कल पूछ लेंगे इस डाउट को, एंड दैट टुमारो नेवर कम्स। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, that you're writing your doubts every day in a notebook. After 10-12 days, the doubt book starts giving you the pressure. That doubt book starts giving you the pressure. Oh my God, 3 pages are lying and I'm not going to the faculty. Believe me, आप resist नहीं कर पाओगे, और 15वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, whatever the limit of yours, you will take the doubt book and you'll go to the faculty or your teacher to clarify those doubts. अब देखिए इसका एडवांटेज नंबर 2, once you reach to the teacher, अभी तक क्या हो रहा था कि ये टीचर माइट बी फीलिंग, अरे यार ये तो ऐसे ही किताब से लाता है, उठा करके डाउट मेरे को पूछने के लिए आ जाता है, इसने कोशिश किया भी कि नहीं, आई डोंट नो। नाउ योर टीचर इज सो मच हैप्पी, व्हाट ऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड। इसने अपने पूरे 15 दिन के डाउट को प्रॉपर नोटबुक में कंपाइल करके मेरे पास आया है पूछने के लिए। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सपोर्ट हिम। तो ये इसके एडवांटेज नंबर 2 है। योर टीचर इज गोइंग टू सो मच हैप्पी। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट,
डाउट वो होता है जिसको कि आपने कोशिश किया बट आप नहीं कर पाए, दैट इज डाउट. डाउट डजंट मीन कि सर फिजिक्स वाले बुक का पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 10 सर प्लीज बता देना ना. दिस इज नॉट डाउट. तो यहां पे योर टीचर इज गोइंग टू बी सो मच हैप्पी. एडवांटेज नंबर 3, बहुत बड़ा एडवांटेज है. अभी क्या होता था कि जब एग्जाम के पेपर मिलते हैं हमारे पास, जब भी एग्जाम का पेपर मिलता है तो पहला रिएक्शन हमारा आता है, अरे ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, पता नहीं मैं एकदम सोच के रखा था, सर ने मेरे को क्लास में पढ़ाया था, अब पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से स्किप कर गया, मैं इसको रिवाइज नहीं कर पाया प्रॉपर एंड आई डोंट नो द आंसर. मैं एकदम सोच के रखा था ये चीज. गाइस, ये चीज आपका अब कभी नहीं होगा. बिकॉज होता क्या था कि अभी आपके जितने भी डाउट थे वो अलग अलग पेजेस में फैले हुए थे, स्प्रेड आउट थे. कोई पेज नंबर 1 में, कोई पेज नंबर 5 में, कोई 20 में, कोई 100 में, कोई इस बुक में, कोई उस बुक में. और यू नो इट, once things are not organized at one place, you tend to forget. It's again a human psychology. There was a call anyway. So you tend to forget. आपको लगता है कि यार वो वहां पे था और पता नहीं उसका इंपॉर्टेंस होगा कि नहीं, और वो पता चलता है आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाकर के. बट हियर इन दिस मैकेनिज्म यू विल नेवर फॉरगेट एनीथिंग. अभी क्या होगा, हर चीज आपकी आंख के सामने से गुजर रही है. बिकॉज वेन एवर यू गोइंग टू राइट डाउन द नेक्स्ट डाउट, आप वो फ्लो फिर देख रहे हैं. एडवांटेज नंबर 4, एग्जाम के पहले रिवीजन करना हो, अपने वो डाउट बुक को जस्ट टर्न अराउंड करके एक बार देख लो. बिकॉज दिस इज द थिंग दैट यू हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3-4 months. यही तो नॉलेज गेन है गाइस, कि जो मेरा डाउट एरिया था उसको मैंने कैप्चर कर लिया पूरा. And this is going to give you awesome motivation. Because जब आपको सामने वो चीज दिख रहा होता है कि ये सारे डाउट्स मैंने पिछले 4-5 महीने में थे और इसके ऊपर मैंने अपनी मास्टरी कर ली है, ये जो मोटिवेशन होता है ना स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन थिंग दैट यू विल रिक्वायर क्वाइट अ लॉट. बिकॉज आगे आने वाले टाइम में ऐसे मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. Because now onwards things will change. कभी कभी क्या होता है ना, खासकर 9th के स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील यार अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी छोटा हूं यार, 9th क्लास में हूं, अभी प्रेशर ज्यादा नहीं लेने का, अभी तो स्कूल वगैरह को ठीक ठाक कर लेने का है. तो ये फीलिंग अपने अंदर से बिल्कुल निकाल लो. बिकॉज आप ही के पैरेलल बहुत सारे स्टूडेंट्स, दे आर स्टडिंग एंड स्टडिंग वेरी सीरियसली, taking help from coaching institutes, taking best support in the self-study part. और believe me, मैं आपको FITGI के प्लेटफॉर्म से बता रहा हूं, there is no substitute for self-study. और मैंने आपको जो आज टूल दिया है, basically this is going to help you to improve your performance while you're doing the self-study. आप लोगों के क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेस मैं बाद में ले लूंगा. मैं एक बार थोड़ा सा चीजों को कंप्लीट कर लूं, मुझे लगता है वो ज्यादा कंफर्टेबल तरीका होगा. एक चीज जो और हम लोग का आज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मतलब पर्पस था आज के इंटरेक्शन का, दैट वाज टू गिव यू सम डिटेल्स अबाउट द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. आपको पता है स्टूडेंट्स की क्लास 10th के अंदर देयर इज वन एग्जामिनेशन which is a national level exam, and this exam is so unique that you can appear only once in your lifetime. Yes, lifetime. ऐसे कोई और एग्जाम नहीं है स्टूडेंट, चाहे वो जेई का ले लो, आईआईटी ले लो, मेडिकल ले लो, डिफेंस सर्विसेज ले लो, फैशन टेक्नोलॉजी ले लो, सिविल सर्विसेज ले लो, बैंकिंग ले लो, whatever the exam you can recall,
हर के अंदर आपको 2 3 4 मौके मिलते हैं, बट दिस इज वन एग्जाम where you get an opportunity of a lifetime, that's only once. Can any one of you name कौन सा एग्जाम है ये? NTSC. 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 Okay, and what is this NTSC stands for? Yes, very good. You said it right. What is this NTSC stands for? Very good. What's your name, guys? क्या नाम है बेटे आपका? सक्षम. National Talent Search Examination. National Talent Search Examination. वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए आप लोग क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट हो, एंड आई मस्ट टेल यू गाइस, मैं आज तक नहीं भी तो कम से कम 100+ स्कूल्स के अंदर बच्चों से इंटरेक्शन किया हूं, और लास्ट ड्यूरिंग द कोविड टाइम आल्सो इट्स नॉट लेस देन 20-25 स्कूल्स जहां पे कि हम लोग इंटरेक्ट किए हैं और बच्चों को वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाई के तरीके के अंदर हम लोग बताते रहते हैं. आज का जो प्लेटफॉर्म है, आज जो आप लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला है, आई मस्ट टेल यू गाइस अ वेरी सीजन, और आगे आने वाले टाइम में अनदर 20-25 मिनट्स टाइम मैं आपको एनटीएससी के बारे में गोइंग टू गिव यू ब्रीफ, और इतने इनलाइटनिंग ब्रीफ है ये, on why this exam to be appeared by all students. I'm going to give you a reason for that. Can any one of you tell me कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कब होता है और किस क्लास के बच्चों के लिए होता है? Sir, after 10. Okay. Sir, in December month. In December Okay. month, sir, for class 9 and 10. Sir, it Okay. held in 10th class. ओके, वेरी गुड, वेरी इंटरेक्टिव गाइस. देखिए मेरा पर्पस था कि आप लोगों को सुनना, आंसर करेक्ट हो या आंसर रॉन्ग हो, दैट इज इमटेरियल. द पॉइंट इज दैट यस, आई वांट टू स्पीक आउट, आई वांट टू कन्वे माय व्यू, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. बाकी चीजें बताने के लिए तो मैं हूं यहां पे. देखिए मुझे एक और एग्जांपल याद आ रहा है जब एनटीएससी की बात मैं करता हूं. इतना जबरदस्त एग्जाम है गाइस. डेफिनेटली दिस एग्जाम हैपेंस इन द मंथ ऑफ नवंबर. हालांकि लास्ट ईयर ये दिसंबर में हुआ था, बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारी चीजें डीरेल हो गई हैं. यू नो, बहुत सारे नेशनल एग्जाम, हमारे स्कूल एग्जाम देखो, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, 10th बोर्ड 12th बोर्ड कैंसिल हो गया. बट आगे आने वाले टाइम में वी आर वेरी होपफुल कि थिंग्स विल बी राइट ऑन ट्रैक. आप लोगों के एग्जाम्स सही होने चाहिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अनदर down the line 1 or 2 months things will be perfectly all right. लेकिन लास्ट ईयर ये दिसंबर के अंत हुआ, के मंथ में हुआ था. लेकिन इसका इस बिल्कुल फिक्स टाइम है स्टूडेंट. ये होता है यूजुअली सेकेंड संडे ऑफ नवंबर, एंड दिस इज फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट. मतलब जो बच्चे अभी 10th के अंदर हैं उनके लिए मान के चलो कि वी हैव अबाउट 4 months टाइम, और 9th के अंदर जो बच्चे हैं उनके पास करीब 1.5 साल का टाइम है. दैट्स वेरी गुड. बट ये 4 महीने के अंदर, बिकॉज चैलेंजेस तो 10th वाले बच्चों के लिए है, 4 महीने के अंदर कैन आई सक्सीड इन एनटीएससी? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन. जैसे ही हम समय लिमिट फिक्स करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सर कैन आई डू एनटीएससी इन 4 months? बिलीव मी, मैं आपको जब थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा ना इस एग्जाम का, you will start realizing सर अब तो मैं दूंगा बिल्कुल. बिकॉज ये एग्जाम देने का जो पर्पस है वो सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं है स्टूडेंट. एग्जाम एक्चुअली वर्क्स एज अ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम. बिलीव मी, अगर एनटीएससी का आपने सही से प्रिपरेशन किया तो कम से कम 5% का आपको एडवांटेज मिलेगा 10th बोर्ड फाइनल एग्जामिनेशन में, बिकॉज द सिलेबस एब्सोल्युटली सेम. वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी. लेकिन उसके पहले NCERT book. हाँ जी, Sir, it is same from NCERT. मैं पूरी चीजें बता रहा हूँ गाइस. अभी मैं पूरी चीज आपको बता रहा हूँ. मैं उसके पहले थोड़ा सा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ आपसे. देखिए कभी कभी होता है ना,
हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि व्हाई आई शुड टेक एक्स्ट्रा प्रेशर यार, ऐसे ही मेरे पास 8 घंटे होते हैं, नंबर लाना चाहता हूँ, स्कूल में आ नहीं रहे, एक अलग से सर ने बोल दिया एनटीएससी तैयारी करो यार, व्हाई आई शुड डू दैट। आपको पता है कि एनटीएससी क्यों देना चाहिए? यस, आई एम आस्किंग विथ यू, कैन एनीवन शेयर विथ मी व्हाई आई शुड अपीयर फॉर द एनटीएससी एग्जामिनेशन? क्यों मुझे अपीयर करना चाहिए? Any one of you, just random, any idea? आप माइक ओपन करके बताओ, we wanted to listen. Sir, for knowledge and to take part in the best college. Okay, very good. एक आंसर मिला मुझे, दूसरा आंसर बताइए। Sir, for admission test of college to get direct entry, when we will get some knowledge also about most of the exams. Very good, very good response. Third, anyone else? Sir, to check my inner ability. Inner ability. शिवम, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। फोर्थ, गाइस कुछ और सजेशन दो, बहुत सारे एडवांटेज है यार, मैं लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज की तलाश में हूं। देयर आर मेनी बेनिफिट्स, बट व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एनटीएससी? Sir, in government jobs. अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, लिसन इट केयरफुली। Sir, it increases our confidence. Increases our confidence. Wonderful, wonderful. अच्छा अब मेरी बारी, ठीक है? I'm going to share a real story of my student. बहुत पहले की बात है, ये हो गया करीब 8-9 साल। इनका नाम था अंकित, ठीक है? He was from डाल्टनगंज। हाँ, he was from डाल्टनगंज, और ये हमारे फिटजी को ज्वाइन किए थे क्लास 11th में। He was from MKDAV डाल्टनगंज। 2 साल स्टडी किया, बहुत स्टूडियस, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, बट ही वॉज वेरी फोकस्ड। जहां से मन किया क्वेश्चन लिया, सॉल्व किया, लगे रहता था। फाइनली ही गॉट आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 29 in JEE, and he got admission in IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस। यहां तक तो स्टोरी बिल्कुल ठीक था। मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले ही कॉल्ड मी, उसका नंबर मेरे पास नहीं था, ही कॉल्ड मी, सर आई एम अंकित, पर्टिकुलर बैच उसने बताया कि ये बैच से मैं था सर आपके पास, एंड congratulations to you. So मैं सरप्राइज था कि अंकित, मैंने पूछा कि अंकित, आर यू द सेम अंकित गॉट ऑल इंडिया रैंक 29? बोले यस सर, एंड आई एम राइट नाउ इन कैलिफोर्निया, और सर congratulations to you because my record has broken. He saw the promotion in of FitG promotion in Facebook, और वहां से देख के उसने मेरे को ये कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मैं सरप्राइज हो गया यार, इतने दिनों बाद अंकित हैज कॉल्ड मी, बिकॉज आई रिमेंबर दिस गाय। मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, अंकित हाउ कम यू लैंडेड इन कैलिफोर्निया एंड व्हाट आर यू डूइंग? बोले सर आई गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट विथ गूगल एंड आई एम वर्किंग विद द सिलिकॉन वैली, उनका जो हेडक्वार्टर है वहां पे काम कर रहा हूं, एंड एट द सेम टाइम आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम एमटेक फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, which is hardly, half an hour drive from my workplace. Guys, आपको पता है कि इंडिया का जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, यूजुअली मतलब इंजीनियरिंग में और बाकी सारे प्लेटफॉर्म में, IIT मुंबई इज कंसिडर्ड टू बी द नंबर 1. कैन एनीवन टेल मी कि उसका वर्ल्ड रैंकिंग क्या है? किसका सर? द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसका वर्ल्ड रैंकिंग क्या है? यू सरप्राइज टू नो, हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी जो बेस्ट है उनका वर्ल्ड रैंकिंग, ऑल्दो इट्स कीप ऑन चेंजिंग, इट इज अराउंड 130. मतलब इंडिया का जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसका वर्ल्ड रैंकिंग अगर करोगे तो दैट इज 130. मतलब 129 यूनिवर्सिटीज आर बेटर देन इंडियन यूनिवर्सिटी.
और जिस यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया स्टैनफोर्ड, दिस कम्स इन द टॉप 3 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी देखिए उसका जर्नी, अ स्टूडेंट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जस्ट लाइक आपके शहर जैसा है वैसे ही है डाल्टनगंज भी, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। Joined in 2-year classroom program, studied focusedly for 2 years, went to IIT Kanpur, campus recruitment, Google के अंदर गया. He said, sir, Google is paying me about 76 lakh rupees per annum package. And this is a dream package for anyone. And I'm doing the MTech part-time from the Stanford University, top 3 university of the world. जब इतना उसने बताया तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। मैंने पूछा कि अंकित बताओ यार, हाउ कम यू लैंडेड, मतलब गूगल ने क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब व्हाट क्वेश्चन दे आस्क इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बोले सर दे डू नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक भी क्वेश्चन नहीं था सर। यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क मी, Ankit, tell me about yourself. Usually this is the happens to be the first question in any interview. Tell me about yourself. He said, the moment I started saying that I'm Ankit, I got 93% in 10th board examination and I am an NTSC scholar. Believe me, Ankit said, बोले सर जितना मैंने जब इतना बोला ना, सामने जो इंटरव्यू वाले थे वो सर बोले कि अंकित ओके, आई गॉट टू नो अबाउट यू, आई डो नॉट वांट टू नो एनीथिंग मोर, लेट्स डिस्कस अबाउट द सैलरी पैकेज। अब भैया वो इंटरव्यूअर को ऐसा क्या पता चल गया था कि वो 1 मिनट के इंटरव्यू में उसने सारा कुछ इसके चीजों को समझ लिया। जब मैंने ये चीज अंकित को बाद में पूछा, जो कि उसको रिस्पॉन्ड किया था इंटरव्यूअर ने, कि माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू चेक योर नॉलेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अभी आप लोग छोटे हो, लेकिन आज से 6 साल 8 साल 9 साल के बाद आपको ऐसा कोई मौका मिलेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी इंटरव्यू में वो आपके नॉलेज को चेक नहीं करते, वो तो आप रट्टा मार के मगिंग अप करके नॉलेज बढ़ा सकते हो। दे वांटेड टू चेक योर एटीट्यूड, because any company hires you for your attitude, not the knowledge. Because आपका अगर एटीट्यूड सही है तो वो तो ट्रेन कर देंगे भैया, हर एक कंपनी में ट्रेनिंग होता है। और एटीट्यूड कैसे पता करते हैं? एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ? आर यू अ हार्ड वर्कर, आर यू अ गोल चेजर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है ना वर्ड इंग्लिश में कॉल्ड परसिवरेंस, नाम सुना होगा आपने। परसिवरेंस का मतलब होता है लगे रहने की क्षमता। कभी कभी प्रॉब्लम सामने आता है ना, अरे वी गिव अप, पता नहीं ये नहीं होगा यार, हटाओ उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो परसिवरेंस क्या है आपके अंदर? तो ये सारी क्वालिटी हम कैसे पता करेंगे? मैं आपसे पूछूंगा कि बेटे आर यू हार्ड वर्कर, डू यू चेज द गोल, आर यू गिव अप इन द बिटवीन? इसके पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये बड़ी कंपनियों का, कि आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स क्या कहते हैं। डेफिनेटली द बोर्ड एग्जाम मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द पैरेलली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनटीएससी रिजल्ट। बिकॉज अगर आप एनटीएससी स्कॉलर हो, इसका मतलब कि आपने ब्लड में, आपके एटीट्यूड में वो चीजें हैं जो कि आप बचपन से एक्वायर करके रखे हो। 10th बोर्ड का मतलब कि बचपन से वो सारी स्किल हैं आपके अंदर। आपने ऐसा नहीं था कि 11th 12th में आके मगिंग अप करके चीजों को, नो, it was there and it is there inside your blood, and that is the thing that industry and the multinational especially looks into. So guys, you appear for NTSC for pride and honor. Believe me, this is the biggest advantage of NTSC. Yes, you get the scholarship also. 1250 रुपए का स्टाइपेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर मंथ देगा और देता रहेगा। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1250 रुपया तो बहुत लोगों का पॉकेट खर्च भी नहीं होगा यार, उससे ज्यादा पॉकेट खर्च कर देते हैं हम लोग। बट द ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली प्राइड एंड ऑनर, एंड दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट यू विल रियलाइज
जब आप 11th 12th करके कहीं इंजीनियरिंग में, कहीं मेडिकल में, कहीं डिफेंस सर्विसेज में, कहीं लॉ कॉलेजेस में आप जाओगे, उसके बाद जब आप किसी के साथ काम करना चाहोगे, these skills are going to give you lots of value additions. So my first objective was to give you NTSC है क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, why I should appear for the NTSC. अब एक काम करते हैं, मैं एक थोड़ा सा आई थिंक मेरे पास एक वीडियो होगा, मैं आप लोगों से बच्चों थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूं और जस्ट अ मोमेंट. हाँ, इसके अंदर ना हमने कुछ पीपीटी में डिटेल्स बना के रखा है, तो इस चीज को ध्यान से आप लोग नोट कीजिएगा. आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस पीपीटी. जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी 1 minute प्लीज. Just hold on, guys. देखिए, आप यहाँ पे आने के लिए मैंने भी आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत किया है और मेरा भी ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को मैं चीजों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं और ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूं जो आपके माइंड में रिटेन करे. आप लोग देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जहां भी आप लोगों को लगे यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. और देखो, अब हिस्ट्री पे ज्यादा नहीं जाते हैं, बट कब स्टार्ट हुआ, and पता है आप लोगों को कि एनटीएससी पहले क्लास 8 के बच्चों के लिए हुआ करता था. आप इसमें देखिए 2006 के बाद ये चेंज हुआ था, बट उसके पहले 8th के बच्चों के लिए होता था. तो अभी आप लोग ये मत सोचो कि अभी आप लोग बच्चे हो. अगर पहले के पैटर्न पे हो रहा होता तो एनटीएससी आप लोगों के लिए पास्ट टेंस हो जाता. बट अब इन लोग गवर्नमेंट ने इसको 10th के स्टूडेंट के लिए कर दिया है. तो बोथ ऑफ यू गाइस, मतलब 9th and 10th, you have sufficient time. Yes, I'm telling you for the 10th student also, you have sufficient time. वो पढ़ाई कैसे करनी है मैं आपको 10 मिनट के अंदर बताऊंगा. अभी देखिए, ऑफलाइन एग्जाम होता है गाइस, दिस इज नॉट ए ऑनलाइन एग्जाम. एंड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल आस्क्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना. 2 स्टेजेस के एग्जाम होते हैं, फेज 1, फेज 2. फेज 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी पुराना एक्चुअली है इसलिए इसमें 18 और 19 लिखा हुआ है, बट ये ध्यान रखना नवंबर 2nd संडे फेज 1 एग्जाम होता है. इस चीज को ध्यान रखिए कि फेज 1 एग्जाम जो होता है गाइस, ये स्टेट लेवल एग्जाम होता है और इसके अंदर सीट्स लिमिटेड होते हैं. टोटल सीट्स रिजर्वेशन मिला करके झारखंड स्टेट में अराउंड 144 के करीब हैं. अगर आप जनरल कैटेगरी में काउंट करोगे अराउंड 84-85 के करीब आते हैं. उसी के अंदर आपको कंपीट करना. ये सीट नहीं बढ़ेगा, ये सीट यही रहेगा. और जो बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे, they will participate in phase 2, which is called the national round. Every state has their own number of students and they compete with each other. और finally एनटीएससी स्कॉलर करीब 2000 बच्चे को एनटीएससी स्कॉलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है आफ्टर द फेज 2. तो फेज 1 मैंने बताया नवंबर में होगा, फेज 2 इन द मंथ ऑफ मई के अंदर करीब होता है. दोनों का पैटर्न सेम है स्टूडेंट, दोनों का पैटर्न सेम है. 1-2 पेपर होते हैं, इसको ध्यान से नोट कर लेना. पहला पेपर मैट, दूसरा पेपर सैट. कैन एनीवन टेल व्हाट इज स्टैंड्स फॉर मैट? MAT का फुल फॉर्म क्या है? Mental ability test. वेरी गुड. एंड व्हाट इज सैट गाइस? SAT? Okay. SAT, मैट एंड सैट. देखिए पेपर 1 मैट लिखा हुआ है, पेपर 2 इज सैट. Sir, a scholastic assessment test.
Okay, you can take it as scholastic assessment test or you can as scholastic aptitude test. Both are same. Very good. देखिए मैं बहुत सारे टॉप स्कूल्स के बच्चों से भी पूछता हूं तो बहुत लोग नहीं जवाब दे पाते. So congratulations to all of you guys. Very interactive and very motivating. So mental ability and scholastic aptitude test. 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे. इसको नोट कर लेना. 100 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी में, 100 क्वेश्चन सैट के अंदर. अब ये 2 बहुत बड़े क्वेश्चंस यहां पे आ जाते हैं कि भैया ये मैथ कौन सा चीज है और ये सैट के अंदर होता क्या है. तो गाइस इस चीज को ध्यान से समझिए. मैथ के अंदर क्या पूछा जाता है. देखिए एक आयरनी क्या है कि एक ऐसा पेपर which is most important for all the competitive examinations जो फ्यूचर में आप दोगे, और ये पेपर इसकी पढ़ाई हमारे स्कूल में नहीं होती है because it doesn't comes under the CBSE course curriculum. हाँ, there are few schools that they take their own effort और मैथ की क्लासेस कराते हैं, but usually schools के अंदर ये नहीं होता है. It means self awareness is very important and you have to make your own effort in mastering this math paper. And believe me, एक बार जब आपका awareness और interest आ जाएगा ना, मैं कुछ tools आपको बताऊंगा जिसके अंदर मैथ में आप पूरा स्कोर कर सकते हो. So it is all about math and SAT. आपको मैंने दिखाया कि बेटे 200 नंबर का पेपर है, 2-2 घंटे का, पूरे 100 मार्क्स जो हैं वो मैथ के हैं. मींस 50% वेटेज is on mental ability. टेस्ट ऑफ रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे. टेस्ट ऑफ रीजनिंग के प्रॉब्लम्स आपने करे होंगे, वही मेंटल एबिलिटी है. हाँ, उसको पढ़ाई कैसे की जाती है, देयर इज सम डिफरेंट टेक्निक एंड देयर आर सम स्मार्ट टूल्स जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूं. ठीक है, तो मैथ और सैट आपने पढ़ लिया, समझ लिया. मेंटल एबिलिटी के अंदर देखिए 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. अब ये क्या होता है? वर्बल का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ऐसे क्वेश्चन जिसको आप वर्बली पढ़ सकते हो. अब मान लो एक क्वेश्चन है कि राम के ब्रदर के भाई का बेटा उसका चाचा लगता है, तो बताइए राम का वो क्या लगेगा. ऐसे दिस आर द वर्बल रीजनिंग. यस बोलो. Sir, can you repeat the question? आई एम नॉट रिपीटिंग. देखिए क्वेश्चन रिपीट करने का इंपॉर्टेंस नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वर्बल रीजनिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिसको आप पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो. और नॉन वर्बल मतलब कि क्वेश्चन जो पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं, दोज आर कॉल्ड नॉन वर्बल. जिसको बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, पिक्चर को आप पढ़ नहीं सकते हो, बट यू कैन सी. अब मान लीजिए एक डायस दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है जिसके 3 फेसेस आपको दिख रहे हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 3 जो डॉट है इसके बैक साइड में कौन सा डिजिट होगा, बताइए. सो देयर इज अ ट्रिक फॉर दैट. उस चीज को कैसे समझना है वो चीज आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपके अंदर इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो जानकारी के लिए. अभी देखिए हम लोग मैथ की बात कर रहे हैं. मेंटल एबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जाता है कि अर्लियर इज द बेटर. जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे स्टूडेंट्स, वो इसलिए नहीं कि आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि ये हैबिट की बात होती है और हैबिट आपके ब्लड में जाता है. जिसको मैं बोला ना, एटीट्यूड और आदत. आप जितनी जल्दी करोगे अर्ली स्टेजेस इन योर लाइफ, वो आपका पार्ट ऑफ प्रोसेस बन जाएगा, आपकी वो आदत बन जाएगी. 9th क्लास इज एब्सोल्युटली अ राइट टाइम. जो स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास में हैं, मैं आपको कुछ स्मार्ट टूल्स बताऊंगा. जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दोज स्मार्ट टूल्स और उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए. आप डेफिनेटली अभी भी प्रिपेयर कर सकते हो एनटीएससी 2021 के लिए. अब देखिए मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ध्यान रखना, वो बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे होते हैं. अगर आप कहीं भी गूगल सर्च करोगे ना, मेंटल एबिलिटी में टोटल 16 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस होते हैं. 16 वेरिएशंस हैं. 16 वेरिएशंस में जो फर्स्ट एंड बेसिक होता है दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट.
अल्फाबेट, मिरर इमेज, वाटर इमेज, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद आपको आएगा काउंटिंग द ट्रायंगल्स, वेरियस स्टेप्स आर देयर। आप कहीं भी गूगल करके वेरियस फॉर्मेट ऑफ मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, उस सारे फॉर्मेट को एक बार पहले अपने को कंसाइज करो। देयर आर लॉट मेनी गुड बुक्स आर आल्सो अवेलेबल, जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी के सारे फॉर्मेट को एक जगह रखा हुआ है और उसके सबके शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दिए हुए हैं। देखिए सैट पे मैं भी थोड़ी देर में आऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान से समझना। मैंने बताया कि सबसे पहला मेंटल एबिलिटी को पढ़ने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, स्मार्ट टूल है। आप लोगों ने एक टेक्निक होता है साइंस के अंदर चीजों को रिकॉल एंड रिमेंबर करने का, दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स। निमोनिक्स का नाम सुना है स्टूडेंट्स आज से पहले आप लोगों ने कभी? No, sir. Can anyone tell me what is this mnemonic? चलो मैं आज बताता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस चीज को ध्यान से समझना, ये इतना जबरदस्त स्मार्ट टूल है। एंड बिलीव मी, जो आप लोग कभी सुनते हो ना कि यार ये सारा रिजल्ट आज डीपीएस से और जेबीएम शामली के बच्चे लेके आ रहे हैं, पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं यार ये लोग, कैसे कर लेते हैं सारे यहाँ के बच्चे? क्या स्कूल में कुछ अलग पढ़ाई होता? नो, ये सारे बच्चे जो हैं ओरिजिन आप ही के जैसे शहरों से होकर के फिर यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन एक चीज इन्होंने सीख रखा है, जो अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा, दोज स्मार्ट टूल्स। एक स्मार्ट टूल तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, भैया पढ़ाई की कैसे जाती है, हाउ टू हैंडल योर डाउट्स। और ये एक दूसरा स्मार्ट टूल है, दैट इज द यूजेस ऑफ निमोनिक्स। Guys, mnemonic is a science which basically help you to remember and recall any complex thing very smartly and quickly. करते क्या है कि कोई भी चीज जो आपको याद नहीं होता है उसको एक कोड के फॉर्म में लिख करके दिमाग में सेट कर लेते हैं, उस कोड को सेट कर लेते हैं, और जब भी मौका मिला कोड को निकाला, वो चीजें बिल्कुल सामने क्लियर। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। आप लोग ये बताओ कि 9th 10th में ज्योग्राफी तो पढ़ते हो आप लोग? Yes, sir. ओके, ज्योग्राफी के अंदर एक क्वेश्चन आता है गाइस। ओके, एक क्वेश्चन आता है एटमॉस्फेरिक लेयर। देयर आर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स। और क्वेश्चन कभी कभी हमारे पास आ जाता है कि देयर आर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी क्वेश्चन आता है हम लोग कितना रट्टा मार के जाएंगे एग्जाम में, गेट कंफ्यूज्ड। यार मैं तो याद करके गया था कि पहले ट्रोपोस्फेयर था कि मेजो था, पता नहीं एक्सो लास्ट में होगा, आयनो कहां पे था। कितना याद करके जाओ, 100% एक्यूरेसी के साथ जवाब देना मुश्किल हो जाता है। डू यू एग्री ऑन दिस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आप लोगों को देखो, अब मैं आप लोगों को पावर ऑफ निमोनिक्स दिखाता हूं और आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि आज के बाद पूरी जिंदगी में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आप इतने सुपर कॉन्फिडेंस से जवाब दोगे कि सामने वाला हैरान हो जाएगा, यार इतना कॉन्फिडेंस। सी द पावर ऑफ निमोनिक्स। मैं आप लोगों को एक कोड देता हूं, जस्ट एक वर्ड बता रहा हूं, इस वर्ड को याद कर लेना। एंड द वर्ड इज वेरी सिंपल, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। एंड द वर्ड इज ट्रस्ट मी इन एग्जामिनेशन। द वर्ड इज, आई रिपीट, ट्रस्ट मी इन एग्जामिनेशन। इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये कोड है। अब देखिए मैं एटमॉस्फेरिक लेयर को डिकोड करता हूं। ट्रस्ट का पहला 2 वर्ड क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट 2 वर्ड ऑफ ट्रस्ट?
TR stands for troposphere. Yes, ठीक है? sir. Troposphere. अब मैं डिकोड कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो। ट्रस्ट का पहला 2 वर्ड का डिकोड मैंने किया ट्रोपोस्फेयर। चलिए, ट्रस्ट का लास्ट 2 वर्ड है ST। ST इज द सेकंड लेटर, स्ट्रेटोस्फेयर। बहुत अच्छा। तो ट्रस्ट से मैंने 2 निकल गए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा वर्ड मैंने दिया था Mesosphere. Mesosphere. Yes, very simple. And the third word I've given you in. Exosphere. In stands for ionosphere. Ionosphere. Yes, you know it. In stands for ionosphere. And the last but not the least, examination, the first 2 word is EX. Exosphere. Exosphere. How simple it is. Exosphere. How simple it is. I mean, I don't have to remember the order anymore. I just have to remember, trust me in examination. Just आपने ये लिखा, चीजों को decode किया, that's done. Isn't it so simple? And very charming. ये है power of mnemonics. समझे? और you can apply in every field. Physics, chemistry, maths, history, civic, geography. मतलब मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं गाइस, पूरा पीरियोडिक टेबल निमोनिक के अंदर याद करके रखा हुआ है, पूरा पीरियोडिक टेबल। सी एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच एक्साइट्स यू, जो आपको मोटिवेट करता हो, वो आपका निमोनिक है। आई एम नॉट आस्किंग दैट रिमेंबर माय निमोनिक, इनोवेट योर्स। इस पे टाइम दो। अब पता है सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द मोस्ट अनप्रोडक्टिव टाइम इन योर 24 hours? Do you know about that? चलो शेयर करते हैं, बताओ। मॉर्निंग भैया इतना क्यों? उसमें तो फ्रेश होते हैं हम लोग मॉर्निंग में। नाइट तो सोना तो बहुत जरूरी है। Evening. देखो, सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम भी ये, मतलब रिसर्च में कहीं पे आया था, हालांकि अभी तो आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, बट whenever you will start going to school, यूजुअली जब आप स्कूल से घर आ रहे होते हो और घर से स्कूल जब जा रहे होते हो, ये जो टाइम होता है ना बच्चों के लाइफ में, मैं स्टूडेंट्स लाइफ की बात कर रहा हूँ, बहुत अनप्रोडक्टिव होता है। कोई सो रहे होते हैं, कोई लड़ाई कर रहे होते हैं, कोई गप्पे कर रहे होते हैं, कोई ये वो दिस दैट। व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये एक ऐसा टाइम है जिसको कि तुम सबसे प्रोडक्टिव बना सकते हो। यू चैलेंज योर फ्रेंड, भाई कल केमिस्ट्री का तुम एक न्यूमोनिक्स बना के लाना, मैं फिजिक्स के ला के दिखाऊंगा, देखते हैं किसका वाला बढ़िया होता है। ये प्रोडक्टिविटी जिस दिन आ गई ना, जिस दिन सीख लोगे ना, यू गाइज आर गोइंग टू रॉक। नेक्स्ट डे जब मिलोगे, ओके तुम बताओ अपना केमिस्ट्री वाला, वो अपना इंटरेस्टिंग बताएगा, तुम अपना इंटरेस्टिंग शेयर करो। ये जो कलेक्शन है ना, 1 महीने के अंदर देखो इतना जबरदस्त बन जाएगा। और ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअली बच्चे कर रहे हैं। ये सब स्मार्ट टूल है, स्मार्ट टूल नंबर 3। ये स्कूल्स में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, एंड आई एम गिविंग यू द ब्रॉडर पिक्चर। चलिए, एक मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसको इस एग्जांपल के बाद इसको ओवर करेंगे इस पार्ट को। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। देखो, अल्फाबेट इज द बेसिक ऑफ मेंटल एबिलिटी। इंग्लिश में सभी जानते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं। इट स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ जेड। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं जिसका कि रिस्पॉन्ड मैं बोलूं कि बेटे 2 सेकंड के अंदर देना है, 2 सेकंड के अंदर देखते हैं कौन आंसर करता है, विद इन 2 सेकंड। सब कोई माइक ओपन करके रखिएगा। चलिए, एंड द क्वेश्चन इज, आवाज नहीं बिल्कुल। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द 20th लेटर ऑफ अल्फाबेट? 20वां लेटर कौन सा है? सर टी सर। चलो, बहुत लोग तो लगता है अभी कैलकुलेट कर रहे हैं क्या?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। तो ये 12 हुए, 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20वां लेटर हो गया T। My dear student, the importance is here not to convey कि what is the answer, ठीक है। इंपॉर्टेंस ये है कि कौन कितने समय में करके दे रहा है, यही कंपटीशन है। 100 क्वेश्चन है, ऑल्दो आपको 120 मिनट मिलेंगे, लेकिन वहां पे ये क्वेश्चन नहीं होगा कि आप 20th लेटर ऑफ अल्फाबेट बताओ, कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा होगी। मैं आपको अगेन निमोनिक और स्मार्ट टूल के बारे में बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से आप स्मार्ट टूल को यूज करके चीजों को इजीली माइंड में रख सकते हो। अब 2 तरीके हैं। अब भैया टी, हम लोग क्रिकेट देखते हैं। There are 3 formats of cricket. There are 3 format of cricket: Test match, One Day, and T20. We can always remember T20. लेकिन अब वही बात है कि अगर किसी ने पूछ दिया कि 25th लेटर ऑफ अल्फाबेट के राइट में कौन सा लेटर होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ते जाती है ना स्टूडेंट, जेड राइट में, राइट में जेड होगा। अब देखो इसको, ये तो बहुत आसान था क्योंकि लास्ट लेटर हमने पूछ लिया। मैं आपको एक निमोनिक बताता हूं। आप हर 5वें लेटर ऑफ अल्फाबेट को याद करके रख लो, एंड दैट इज वेरी सिंपल, इट्स कॉल्ड इजोटी, EJOTY, इजोटी। कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मतलब नहीं है। निमोनिक्स में बताया ना कि मैंने कोड खाली बना रखा है, इजोटी, EJOTY। अब देखिए, ई का पोजीशन 5 है, जे का पोजीशन 10 है, ओ का पोजीशन 15 है, टी का पोजीशन 20 है, वाई का पोजीशन 25 है। 5 10 15 20 25। अब मैंने याद कर लिए। अब मेरे को कोई भी अगर पूछता है कि 9th अल्फाबेट है, तो मैं ए से काउंट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि 10th वर्ड जो है वो जे है। अब जे से एक पहले क्या होगा? जे से एक पहले क्या होगा? आई। तो मैं सिर्फ एक माइनस करूंगा, वहां से आई निकाल के तुरंत बता दूंगा। ये स्पीड बढ़ाने का बहुत अच्छा टूल है स्टूडेंट, और ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स आपको नेट पे मिल जाएंगे। द पॉइंट इज दैट नेट एक ऐसा खजाना है ना, जो कि तुमको भटका भी सकता है और तुम्हारे नॉलेज को गेन भी करा सकता है। हाँ, आप प्लान्ड वे में अगर ये वहां पे जाते हो कि मुझे आज क्या नेट से निकालना है, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। तो हमेशा प्लान करो कि भैया आज मेरे को 5 बढ़िया निमोनिक्स अल्फाबेट पे नेट से निकाल के पढ़ने हैं। ऐसे प्लानिंग करके जाओगे ना, देन योर नेट इज गोइंग टू बी सो बेनिफिशियल फॉर यू। आपने ये इस चीज को समझ लिया, इजोटी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। Yes, sir. सो माय ऑब्जेक्टिव वाज हियर कि मैथ की पढ़ाई करते कैसे हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना। मैथ के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट मिलेगा, मतलब 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पे। द पॉइंट इज दैट मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग फिगर दे रहा हूं। 200 नंबर का क्वेश्चन हुआ, 100 नंबर मैथ, 100 नंबर सैट। 200 नंबर में कैन एनीवन टेल मी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या होता है? क्या होता होगा कट ऑफ? एक 170। तो एक क्वेश्चन पर आधा मार्क। 180। नहीं, कहा 180, 170 और बताओ 150. 150। अरे भैया 200 में 200 ऐसा तो नहीं हो पाएगा यार, इतना ज्यादा नहीं जाएगा। 170. Sir, approximately 150. सर 140 से 150, सर 140 से 150। 180. 140 से 1। अब देखो, मैं लास्ट टाइम का कट ऑफ तुमको बताता हूँ। लास्ट टाइम का कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी बहुत बच्चों ने बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब सही बताया है। द लास्ट टाइम कट ऑफ वाज 177। मींस 200 नंबर में आपको 177 मार्क्स लाने हैं। वन गुड थिंग इज दैट
देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये खुशी की बात है क्योंकि आप आंख बंद करके भी आंसर दे सकते हो, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक आंख बंद करके आंसर दिए हुए कोई बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये भी है, यू शुड नॉट लीव एनी क्वेश्चन, अटेम्प्ट सब कर सकते हैं, सरकार ने मौका दिया है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन भैया उसी का होगा जिसने की पढ़ाई तो की है, लेकिन पढ़ाई के साथ कुछ स्मार्ट टूल भी इनकॉर्पोरेट करके रखे हैं। देखिए, हाई फाई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट टूल्स, मैंने आपको बताया वो चीज। अब हम लोग मूव करते हैं रेस्ट 50%, दैट इज कॉल्ड स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने आपको क्यों बोला था कि एनटीएससी जो है बेटे वो आपके बोर्ड एग्जाम का मॉक टेस्ट के रूप में काम करता है। यहां पे देखिए कहानी क्या है, मैं आपको एक मोटा मोटी बताता हूं। सैट 100 नंबर का पेपर है गाइस, 100 मार्क्स का पेपर में 40 मार्क्स इज योर सोशल साइंस, मींस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैंने लिख दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 40 मार्क्स का सोशल साइंस। और आज तक क्या हो रहा था कि जैसे कंपटीशन की बात आती है ना, हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे यार फिर से साइंस मैथ्स। यहां पे देखिए 50% तो मेंटल एबिलिटी है और 40 क्वेश्चंस सैट के अंदर सोशल साइंस। तो अब बचे कितने? 60 क्वेश्चन बचे। 60 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स के मैथमेटिक्स आते हैं गाइस, सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स के मैथमेटिक्स हैं। 10 नंबर के अलजेब्रा, 10 नंबर का ज्योमेट्री। ये अलजेब्रा ज्योमेट्री थोड़ा चेंज हो सकता है, बट ये मैं एक मोटा मोटी बता रहा हूं। 20 क्वेश्चन सिर्फ आपके आते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, बिकॉज एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है मैथमेटिक्स से, और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं साइंस से, जिसमें 13 क्वेश्चन फिजिक्स, 13 केमिस्ट्री एंड 14 बायोलॉजी। इट्स सो होलिस्टिक, इट कवर्स द इंटायर एरिया। आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, एंड बिलीव मी एनटीएससी की तैयारी जो होती है, द बेस्ट बुक फॉर एनटीएससी इज द एनसीईआरटी। यस, आई एम रिपीटिंग, the best book for NTSC preparation is the NCERT. Sir, in class 10? Class 9th and class 10th, guys. Both NCERT, both. Sir? Yes, my dear student. जैसे ही कंपटीशन की बात आती है ना, तो हम लोग को लगता है यार कि चलो फिटजी में ज्वाइन करेंगे तब होगा, जब ये 10 गाइड बुक घर में ले आएंगे तब होगा। ऐसा नहीं है, इट इज ऑल विथ यू। आपके स्कूल के टेक्स्ट बुक, आपका एनटीएससी का टेक्स्ट बुक, अगर एनटीएससी नहीं है स्कूल में या कहीं पे तो एनटीएससी रख लो, एनसीईआरटी के बुक आप लोग रख लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सबके बुक रखो। एनसीईआरटी के बुक होंगे, डेफिनेटली होंगे, आपके स्कूल में चलता होगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एनसीईआरटी के बुक को पढ़ने का तरीका ही हमें पता नहीं है। अब मैं यहां से थोड़ा सा बाहर हो जाता हूं और एक बार फेस टू फेस चीजों को बात करते हैं, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। अगेन यू गिव मी 1 minute टाइम, just a moment. Actually we are more convenient over Zoom meeting, तो ये प्लेटफॉर्म भी मैं पहली बार यूज कर रहा हूं, so not a problem. Am I visible to all of you? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. I hope you guys are enjoying. बोर तो नहीं कर रहा हूँ? No, sir. No, sir. No, sir. चलो, बहुत बढ़िया। तो actually I पहले take थोड़ा it. लग रहा है सर, पहले थोड़ा लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा है। Okay, तो I take it as a permission कि मैं 20 मिनट और ले सकता हूँ, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है। हाँ, अभी हम क्वेश्चन आंसर टेकअप करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सो जस्ट लेट मी कंप्लीट, और एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उस पे मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन आंसर पे। डेफिनेटली वी विल हैव टाइम। मैं कहाँ पे था? व्हाट आई वाज टेलिंग यू? कैन एनीवन? NCERT एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं? एनसीईआरटी
एनसीईआरटी बुक की पढ़ाई की कैसे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको गार्ड मान के रख लेना। डू यू नो द मैजिक विथ एनसीईआरटी बुक? आप जितनी बार उसको पढ़ोगे ना, आपको दो नई चीजें मिलेंगी। यू नो, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो होते हैं कम से कम 5-6 बार एनसीईआरटी के चैप्टर को रीड करते हैं। इसको पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है, अपने एटीट्यूड, अपने माइंड गेम, माइंड को चेंज करो। माइंड को चेंज क्या करना है ये मैं बता रहा हूं आपको। जब भी आप, से फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री का बुक खोल के रखा, अभी तो क्या होता है, हिस्ट्री जैसे खोला नींद आने लगती है। अब देखो आपको नींद आएगी नहीं, आप और अलर्ट हो जाओगे। आपने बुक खोल के रखा, आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री आज मेरे को पढ़ना है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है। लेकिन आप जब भी बुक खोल के बैठो, आप ये कभी मत सोचो कि मैं स्टूडेंट हूं। नो, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, बट यू आर अ एग्जामिनेशन सेटर। आज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है थ्रू योर स्कूल और थ्रू एनी रिस्पेक्टेड बॉडी, इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आपको फ्रेम करने हैं। 4 क्वेश्चन यू हैव टू फ्रेम। गाइस, डू यू नो वन थिंग? क्वेश्चन वही फ्रेम कर सकता है जिसको पूरी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक आप रट्टा मार के आंसर कर सकते हो, बट क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर सकते। दिस इज अ साइकोलॉजी। एक बार जब आप पढ़ना स्टार्ट किए, माइंड में आपके ये है, यू आर एग्जामिनेशन सेटर, और हाथ में आपके एक पेंसिल है। पहला लाइन पढ़ा, दूसरा लाइन पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिला, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन निकालने भैया आज। तो आपको लगा कि ये वाला लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, आपने अंडरलाइन किया उसको। कीप ऑन डूइंग दिस। पूरा चैप्टर पढ़ जाओ और देखो कि मैंने 15-20 जगह अंडरलाइन कर लिए। अब आप दोबारा पढ़ना शुरू करो और वो देखो कि 15-20 जगह को फोकस करो। यार, जो मैंने इसे फोकस किया था, इसमें बेस्ट 4 क्वेश्चन क्या बन सकता है। स्टार्ट फ्रेमिंग द क्वेश्चन आउट ऑफ दोज लाइंस और उसको नोटबुक में लिखो। आपका पढ़ाई का तरीका इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और वो जो क्वेश्चन के पीछे जो आंसर है ना, क्वेश्चन लिखने के दौरान आपके माइंड में रिकैप हो जाएगा। इसको करके देखना। बहुत सारे बच्चे इस प्रैक्टिस, खासकर एसएसटी के साथ, क्योंकि एसएसटी में बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, हमें याद करना होता है स्टूडेंट, वो डेरिवेशन नहीं है। आप हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया कोई कि औरंगजेब के बेटे का नाम क्या था, औरंगजेब के फादर का नाम क्या था, तो आप जस्ट लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स आप ये डिराइव नहीं कर सकते हो कि बाबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हुमायूं डिवाइड -2। यू कांट डिराइव दिस थिंग्स। अगर किसी चीज को याद करना है तो याद करना, यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स। तो याद करने के लिए निमोनिक्स है, और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाई करने के लिए आपका ये टूल है। तो इस तरीके से इस टूल का भी यूज करो, बहुत फायदा रहेगा। और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में आप लोग को ये बताऊंगा कि ये एक ऐसा पेपर है, टेक इट एज अ रिवीजन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो, सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सारे पेपर आपके आ गए। अब एक रह गया तो भैया खाली लिटरेचर, इंग्लिश, हिंदी। तो इंग्लिश हिंदी का थोड़ा अलग मेहनत कर लेना। सारे पेपर आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे तैयार हैं। एंड बिलीव मी, यू डो नॉट हैव टू गो टू द हायर लेवल। आप सिर्फ अपने लेवल को एनसीईआरटी लेवल पे बना के रखो। साइंस के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं आते हैं गाइस, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स आता है। 1-2 साल कोई कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल पूछ दिया तो पूछ दिया, दोज आर द एक्सेप्शंस। बट साइंस के अंदर बेसिक फंडामेंटल समझो, थ्योरम के डेरिवेशंस क्लियर रखो, शॉर्ट एंड स्ट्रीट न्यूमेरिकल्स जो डायरेक्ट एप्लीकेशन पे सॉल्व होते हैं, बस उतना तक करके रखना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाना है। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग यू अबाउट द एनटीएससी एग्जामिनेशन। कोई कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है, योर एनसीईआरटी बुक इज मोर देन सफिशिएंट। So that was all from my side today. I hope the session was enlightening. Yes, I would like to take a few questions from some interesting questions.
कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो आप डोंट राइट इट, जस्ट आस्क इट। आप लोग अपना ऑडियो ऑन करो और पूछ लो क्वेश्चन, जस्ट एनी वन ऑफ यू। सर मैथ के लिए कौन सा बुक प्रिफर करना चाहिए? बेटे देखो, मैथ के लिए मैं ऐसा कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, बट हाँ देयर आर मेनी बुक्स। अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, RS अग्रवाल भी है। मैं गाइड बुक ऐसा कोई रेफर नहीं करूंगा, बट मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है आपका इंटरेस्ट, आपका इंक्विजिटिवनेस, इसको बोलते हैं ना, जानने की इच्छा। आज मैंने टारगेट बनाया है कि भैया मिरर इमेज के अंदर, मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या डिफरेंस है, मैं 5 क्वेश्चन निकालूंगी और इसके सॉल्व करने का कुछ ट्रिक्स मैं निकालूंगा। देयर इज अ ट्रिक। मैंने डाइस का जो प्रॉब्लम पूछा आपको कि 2 डाइस रखे हुए हैं और उसमें पूछ दिया कि जो 3 डिजिट है इसके पीछे का कौन सा डिजिट होगा। देयर इज अ ट्रिक ऑन दैट। आप एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें 3-4 लाइन खींचे हुए हैं और क्वेश्चन पूछ दिया कि टेल मी हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इनसाइड दिस पिक्चर। देयर इज अ ट्रिक ऑन दैट। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर ऑल दोस ट्रिक्स, बट वो इंक्विजिटिवनेस आपके अंदर जगाना, आपकी वो इच्छा बननी चाहिए, और वो रहेगा तो आप खुद सर्च कर लोगे यार, गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड, बट हाउ यू यूज इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, बेसिक में RS अग्रवाल वगैरह का एंड मेंटल एबिलिटी का बुक्स आता है, दैट यू कैन ऑलवेज रेफर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। So how to Sir, what study is the One by one. Yes, Students, Aditya. one by one. आदित्य, आप पूछ रहे थे कुछ? आदित्य, so how to study the most boring subject? ओके, मैंने तो अभी बताया आपको, इट ऑल डिपेंड्स विच सब्जेक्ट इज योर बोरिंग। और इनफैक्ट बोरिंग को तो मैंने अभी जो तरीका मैंने बताया, आप तो बोरिंग रहेगा ही नहीं। यूज द टूल ऑफ निमोनिक्स, यू कैन यूज इट इन हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है इन द सेंस कि उसको रिकॉल रिमेंबर करना पड़ता है। बहुत को मैथमेटिक्स बोरिंग लग जाता है, दे डोंट वांट टू प्ले विद नंबर्स। सो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने आपको टूल्स दिए हैं कि एक तो पढ़ाई कैसे करनी है, हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स द बुक, निमोनिक्स कैसे यूज कर सकते हो, अपने डाउट को कैसे क्लैरिफाई कर सकते हो। तो ये टूल को यूज करो और स्मार्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज हो, डोंट ओनली गो फॉर द हार्ड वर्क। Any other question, guys? We had a question, sir, from one of our students regarding the syllabus for NTSC. Okay. देखिए students, NTSC का syllabus almost 50% 9th and 50% 10th. Although थोड़ा सा ज्यादा inclination 10th की तरफ होता है, but it keep on changing year by year. तो अगर जब आपको पढ़ना है तो आप 9th and 10th के पूरे सिलेबस को फोकस करके चलोगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि NCERT बुक 9th और NCERT 10th दोनों के बुक्स आपके पास होने चाहिए। उसके पढ़ाई का तरीका मैंने आपको बताया, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जब आप ट्रिक्स समझ गए, जब आपने वो टूल्स को एक्वायर कर लिया, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिमुलेटेड कंडीशन, सिमुलेटेड मतलब कि ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी बीच में आ गई, बेटे थोड़ा सा चाय कॉफी पी लो यार, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा। नॉट लाइक दैट। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो बिल्कुल टेस्ट का एनवायरनमेंट बना करके 2 घंटा पैक होकर के सामने क्लॉक लगा करके, आपको नहीं भी तो एटलीस्ट अगर एग्जाम नजदीक आ गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। एग्जाम अगर दूर है, मतलब 9th के बच्चों को अभी कम से कम वीक में 1 टेस्ट आपको लेना चाहिए, और जो 10th में है बच्चे, उनको कम से कम 2 से 3 टेस्ट अभी लेना चाहिए, इफ यू सीरियसली वांट टू अपीयर एंड क्रैक NTSC। देखिए NTSC में सीट्स का लिमिटेशन, आई नो दिस चैलेंज, बट आप रेशियो देखोगे ना, कंपटीशन में यही होता है। अगर ऑल ओवर झारखंड में से फॉर एग्जांपल 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 बच्चे अपीयर करेंगे, तो 50,000 में सपोज या 40,000 में 150 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। सेम रेशियो को अगर आप JEE एडवांस या JEE मेंस पे ले जाओ, JEE मेंस में 14 लाख बच्चे, 14 lakh students will appear, 14 lakh students will appear and only 2 lakh
30,000 around will qualify to appear for the JEE Advanced exam. तो आगे आने वाले लाइफ में कंपटीशन का मतलब यही होता है, इट इज मोर फॉर रिजेक्शन नॉट फॉर सिलेक्शन, ठीक है ना? तो ये रेशियो सब जगह यही रहने वाला है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं एक बहुत ही सरप्राइजिंग फिगर देता हूं, जेई मेंस के अंदर पता है आपको एवरेज स्कोर क्या होता है? आउट ऑफ 360 या 390 फिगर चेंज होता रहता है। एवरेज स्कोर या 50 परसेंटाइल स्कोर, एवरेज की बात नहीं करूंगा, 50 परसेंटाइल स्कोर, मतलब कि अगर 14 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं तो वो कौन सा फिगर है जिसको कि 7 लाख बच्चे क्रॉस नहीं कर पाते हैं? गाइस वो फिगर होता है करीब 40 मार्क्स। 40 नंबर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए कंपटीशन में घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ये जान लो कि आपने 50% को तो पहले ही बाहर कर दिया। तो ये जो फिगर होता है ना, बड़े बड़े 14 लाख 15 लाख बच्चे से कंपीट कर रहा हूं, डोंट लेट इट प्रेशर ऑन योर माइंड। Only 40 marks. यस सर, 50% बच्चे, 50% बच्चे ये नंबर को क्रॉस नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा आयरनी है। वो इसलिए क्योंकि जस्ट लाइक अनदर गाय, यार मैं भी जेई मेंस दूंगा, इस बार ऐसी दे देता हूं, नेक्स्ट ईयर तैयारी करके दूंगा। इस चक्कर में 50% बच्चे को पता ही नहीं होता कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए। दे गो टू द एग्जाम अनप्रिपेयर्ड। ये बहुत सरप्राइजिंग फिगर है। तो इसलिए मैं बताऊं, ये हर कंपटीशन में यही चीज होता है गाइस। तुम एनटीएससी ले लो, कोई भी कंपटीशन में 50% जो स्टूडेंट होगा उनका स्कोर जब देखोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा तुम उससे फार अहेड हो अगर तुमने एक छोटा सा भी माइनर सा भी प्रिपरेशन कर लिया। और सबसे बड़ा प्रिपरेशन है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, देयर सिलेबस, जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एंड आई एम ऑलवेज विथ योर जर्नी। ऑनलाइन के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ऑलवेज देयर। और नेक्स्ट टाइम अगर कभी मौका मिला तो हम लोग आपका लाइव मॉक टेस्ट भी करा देंगे, दैट ऑल्सो वी कैन डू। बट उसके लिए है कि थोड़ी सी तैयारी कर लो, मेंटल एबिलिटी, सैट के ऊपर। वी कैन ऑलवेज गिव यू सम वेरी गुड प्रैक्टिस पेपर जो कि स्कूल आपको अपने प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो मैं अभिजीत सर और राजीव सर को बताऊंगा कि एक बार सिद्धार्थ सर से टच में रहिएगा सर, बच्चों की अगर जरूरत हो तो वी कैन ऑलवेज गिव यू दोस पेपर्स। सर एनी अदर क्वेश्चन गाइस? एक क्वेश्चन है सर कि क्या क्वेश्चंस जो हैं अपने एनटीएससी के, क्योंकि क्या वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक से आएंगे या किसी और बुक से भी आ सकते हैं? नहीं, देखिए सर, क्या है ना कि होता है यूजुअली कि ऐसा कोई भी बुक नहीं है दुनिया में जिसमें कि 100% क्वेश्चन आ जाए। बट ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि देयर आर फ्यू बुक्स जो कि हर एक क्वेश्चन को टच जरूर कर लेता है, और उसमें एनसीईआरटी बुक डेफिनेटली इज द नंबर 1। वो इसलिए है क्योंकि ये अपने लेवल को बहुत रेज नहीं करने देता। कभी कभी आप अगर, यूजुअली होता क्या है कि जब हम अपने बुक शॉप पे जाते हैं और मुझे मन है कि यार मैं एनटीएससी के लिए बढ़िया गाइड बुक या बढ़िया बुक लूं, तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि भैया जो सबसे मोटा वाला है ना वो देना, मेरे को सबसे मोटा वाला देना, तो उसके अंदर ज्यादा ज्ञान है, ये मोटा वाला लगा के दिया, उसके बगल में एक पतला सा एनसीईआरटी दे देगा, बोले यार इसमें क्या होगा, ये मोटा वाला ज्यादा होगा, तो हमारे अंदर ये एक क्यूरियोसिटी होती है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग साला जो है उसको माइंड के अंदर डाल देना है बस। बिलीव मी, ये तरीका सही नहीं है तैयारी करने का, ये आपके टाइम को वेस्ट करेगा। बिकॉज अल्टीमेटली 24 आवर्स सबको दिया है गॉड ने। हाउ प्रोडक्टिवली यू यूज दो 24 आवर, दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर सक्सेस। अभी देखो क्या है कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए थे, बोले सर मैंने बड़ा अच्छा गाइड दिया, मैं क्रिस्चॉफ्स लॉ ये वो सारा दिया हुआ है सर, इससे जो मैं तैयारी करूंगा ना परफेक्ट हो जाएगा। भाई मेरे पिछले 20 साल में कभी नहीं पूछा ये सब चीज, कभी नहीं पूछा है। और गेस्ट पेपर बनाने वाले क्या करेंगे कि हर जगह से निकाल के डाल दिया, तुमको जो पढ़ना है पढ़ लो, ये मेरा टेंशन नहीं तेरा टेंशन है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि एनसीईआरटी बहुत प्रिसाइज है और ये भी गाइडिंग फोर्स का काम करता है।
क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जब सीबीएसई, जब जो भी है, ये जब क्वेश्चन फ्रेम करती है ना, उसके माइंड में आप और हम जैसे जो भी एफ्लुएंट क्लास, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको दिमाग में वो नहीं रहता। उनके दिमाग में ये भी रहता है कि यार गरीब बच्चे जो छोटे से स्कूल से हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो केवल एनसीईआरटी वर्क कर सकते हैं, तो क्यों ना उसी को गाइडिंग फोर्स बनाएं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि उनके माइंड में ये पूरा होलिस्टिक व्यू होता है। तो एनसीईआरटी इज डेफिनेटली वेरी गुड। उसके बाद यस, स्कूल मैनेजमेंट इज देयर, वी आर देयर टू गिव यू मोर एंड मोर प्रैक्टिस पेपर्स। प्रैक्टिस पेपर करो, वो जितना करोगे परफेक्शन उतना बढ़िया होगा, टाइम आपके कम होते चले जाएंगे। यू नो, मेंटल एबिलिटी के अंदर जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं 177 नंबर तो मैंने बता दिया, बट जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं किसी का भी नंबर 90 से कम नहीं होता है। आउट ऑफ 100 किसी का भी नंबर 90 से कम नहीं होता है, समझे? और 90 का मतलब समझ लो कि 100 क्वेश्चन में 90 का एक्यूरेसी लेके आना, इट इज ओनली थ्रू द प्रैक्टिस, इट इज ओनली थ्रू द प्रैक्टिस। सिर्फ समझने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा आपको, क्योंकि वहां पे 90 नंबर लाओगे तब जाके एसएसटी में थोड़ा सा मिस करोगे, जाके यू कैन अफोर्ड, यू नो, क्योंकि एसएसटी में थोड़ा सा मिस होगा ही होगा आपका। मैथ्स में 20 में 20 लाना है आपको, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी में कुछ मिस किया, बट लेकर के ये 177 फिगर तो क्रॉस करना है भैया किसी भी हाल में। यस, एनी अदर क्वेश्चन सर? Sir, what is the full form of SAT? SAT. Very SAT, you can take it as a scholastic aptitude test. A scholastic aptitude test, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट आते हैं। वो आपकी स्कॉलिस्टिक, आपके ज्ञान को चेक करने का एक टेस्ट है। दिस इज कंबाइंडली कॉल्ड एज ए स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है ना आर्यन? Okay, sir. Any more question we have? Sir, phase 1 और phase 2, sir phase 1 और phase 2 में जो क्वेश्चन एग्जाम होता है उसमें सर 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है, ये इमेज में दिख रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एंड मंथ ऑफ मई 19, यानी सर 18 और 19, यानी कि 1 ईयर का ड्यूरेशन है। नहीं 18-19 वो का नहीं मतलब हुआ। अगर मैं वो 18-19 पहले का बना हुआ है, मान लो कि 2021 नवंबर में स्टेज 1 होता है, तो 2021 के बाद 2022 में मई जो आएगा उसमें आपका स्टेज 2 हो जाएगा। तो डिफरेंस इज अबाउट कितना, 6-7 महीने का डिफरेंस, करीब 6 to 7 मंथ्स का करीब डिफरेंस होता है ये। तो कोविड के टाइम में थोड़ी सी चीजें डिरेल हो गई हैं, तो अभी जैसे इस साल का नोटिफिकेशन नहीं आया है और थोड़ा लेट ही नोटिफिकेशन आता है। इनफैक्ट अभी पिछले साल का रिजल्ट भी नहीं आया गाइस, दैट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट। लास्ट ईयर जो बच्चे 10th में थे, दिसंबर में एग्जाम दिए थे, अभी स्टेट वाइज रिजल्ट होता है स्टेज 1 का। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट एंड स्टेज 1 इज कंडक्टेड बाय झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक। तो आप लोग बच्चों जैक के साइट पे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साइट को फॉलो कीजिएगा। एंड स्कूल मैनेजमेंट, आई रिक्वेस्ट कि जैसे ही उसमें नोटिफिकेशन आएगा, अप्लाई करने का जो तरीका है, स्कूल हैज टू रजिस्टर एट द जैक साइट। पता होगा सर लोगों को, वहां पे रजिस्टर करेंगे। Keep on doing. जी। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग भी आपको बताएंगे, और सफिशिएंट टाइम होता है, यू कैन अप्लाई। और एक बार स्कूल उसको उस पूरे बच्चों के लिस्ट को अप्रूव कर देता है, देन इट गोज टू द झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और फिर वो आप एग्जाम देते हो। और ये फिजिकल एग्जाम है, दिस इज नॉट अ ऑनलाइन एग्जाम, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि चीजें लॉकडाउन से बाहर निकल जाए हम लोग जितनी जल्दी हो सके। So I think this was a wonderful session from the question answer session. So now we should move forward because it has been a long time, almost 2.5 hours. Okay. So yes, Ujjwal. Sir, I have a question. Hurry up, last question we are taking up. Yes, हाँ जी, last जो question. बताइए। सर मेरा कहना है कि जैसे आपने कहा था कि जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता, आप डाउट का एक नोटबुक बनाएं। करेक्ट। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा जिसको कोई मतलब पूरा चैप्टर ही क्लियर नहीं हुआ, तो वो डाउट कैसे बनाएगा? और पहले डाउट तो अलग बात है, वो चैप्टर
ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन उज्जवल, मुझे समझ में आ गया। एक देखिए, बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारे को एकदम आउट रहता है माइंड में कि यार इससे मैं, सबसे बड़ी बात है कि पहले मुझे ये तो पता चले कि मेरे को डाउट है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड नो दैट यस आई हैव अ डाउट। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर को क्या बोलते हो कि सर, डॉक्टर सर मेरे को दवा दे दो, प्लीज गिव मी द मेडिसिन। बट डॉक्टर तो आपसे पूछेगा ना कि बेटे क्या प्रॉब्लम है आपको। ही विल आस्क यू, यू हैव अ हेडेक, अ स्टमक एक, कोविड है, क्या है भैया बताओ पहले, तब मैं मेडिसिन दूंगा। सिमिलर वे, फर्स्ट यू हैव टू नो उज्जवल व्हाट इज योर प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम है कहां पे? तो इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, जब आप पढ़ाई करोगे ना, एक बार समझ में आया यार मेरे को कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट यू नो व्हाट आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा का पूरा चैप्टर को डिटेल्स में आप लिखिए। पॉइंट आइडिया इज दैट मुझे आज इस चैप्टर का पूरा रिवीजन लेना है सर से, जब भी टाइम मिलेगा पूरा चैप्टर लो। हाँ, एक बार जब लिख लिया पूरा चैप्टर, आपको लग रहा है कि यार सर इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, हो सकता है आपने गूगल फ्रेंड को याद करो यार, एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो है सारे चैप्टर्स के ऊपर अवेलेबल। मुझे पता है, माय सन इज इन 9th स्टैंडर्ड और वो मेरे से ज्यादा गूगल से करके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है डाउट पूछने की जगह। उसको मैंने बोल रखा है कि बेटे डाउट बुक बना के रखो, शाम को मैं आऊंगा, देन आई राइट सम गुड कमेंट ऑन दोस डाउट बुक। आई यूज्ड टू डू, टिक लगाऊंगा, वेरी गुड करूंगा, उससे उसका मोटिवेशन होता है कि माय फादर इज इन्वॉल्व विथ मी। तो ये आप करके देखना उज्जवल, कहीं भी डाउट हो गूगल को जरूर एज ए टूल यूज कर सकते हो। और एक बार जब फाइनली सॉर्टेड डाउन हो गया तो आप टीचर के पास जाकर के फिर उसको करना। आई होप यू गॉट द आंसर। Yes, So, thank you, sir. yes, thank you, Ujjwal. And sir, now it's Yes, time sir. to move forward. So, Right. we would like to thank our resource person, Mr. Pankaj Kumar, Deputy General Manager, FITGI Ranchi, and over 19 years of experience in FITGI Ranchi, to share his valuable time with our students, to share his plan how to prepare for the NTSC and different examination. It was a wonderful and interactive session. It was an eye-opening session even for me also, sir, because it was a fun to enjoy, and it was just a session which each and every student has enjoyed today through active participation. So, on the behalf of entire school management, entire school fraternity, I would like to take this opportunity to propose my vote of thanks to our resource person, Mr. Pankaj Kumar. Thank you, sir, for your valuable time. Thank you. Thank you And so much, sir. I would like to thank our students, our coordinators, our teachers for the support to organize this online webinar. So once again, thank you, sir, for your precious time and spending your time with us. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. And thank you all the students. Thank you for your Thank you, patience, sir. for your involvement. Thank you, sir. And I really enjoyed with you all. मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी फिर आप लोगों से मिलूं जब भी मौका मिलेगा। Thank you, Prakash sir, Rajiv sir, and Abhijit sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.